Hello, friends. Welcome to episode 25 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. So, friends, recently, I was talking to the daughter of one of our business associates and dear friend of ours. She's a young 21-year-old second generation entrepreneur who's actually doing very well in our Amway guided entrepreneurship business. She's actually at the level of what we call BFI 12% and she's moving on very nicely in the business. So जब हम उससे बात कर रहे थे तो she asked me some really important questions and raised some of her doubts that were causing confusions in her mind. और जैसे जैसे मैं उसके क्वेश्चंस आंसर कर रहा था, उससे बातचीत कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि these are very valid concerns that need to be addressed, क्योंकि many of our young U30 entrepreneurs or even the entrepreneurs between the age group of 20 to 40 years might be facing these same doubts and confusions, चाहे consciously or subconsciously वो सोचते होंगे इसके बारे में, and that could be impacting their performance. तो मुझे लगा why not talk about this in our podcast episode, क्योंकि शायद आप में से भी कुछ लोगों के माइंड में सेम सवालात आ रहे होंगे and the same questions might be rising in your mind and this podcast might benefit you. So what I did was I spoke to this girl entrepreneur and I took her permission to talk about our conversation without using her name and she agreed. So here it goes. पहले मैं आपको बताता हूँ about this girl entrepreneur. She's 21 years young with a background in arts and commerce from a very good college. And even though she had plenty of job offers, she decided to pursue the Amway business full time. And she's single and she's living in a tier 2 city. Now what she told me was that most of her age group, जितने भी लोग उस एज ग्रुप के हैं, because they've been using technology for most of their adult life. So they're totally dependent on technology for all aspects of their lives, चाहे वो personal हो, professional हो, commercial हो, entertainment etc. कुछ भी वो करते हैं तो technology को इस्तेमाल हमेशा करते हैं. And because by nature they are unrestrained, hedonistic, pleasure seeking in nature, so they get distracted very easily. क्योंकि ये जनरेशन जो है वो हमेशा से कम बंदिशों वाली, सुखवादी या ये कह लें कि आराम पसंद ज़्यादा है और इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और इनका अटेंशन स्पैन भी कम है. देयर अटेंशन स्पैन इज़ लिटिल बिट लेस. सो फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन सम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी फ्रेंड का पोस्ट आ गया, they will see it, or sometimes they will just get distracted by someone's Insta reel, or sometimes suddenly in between they will take a break and they will start seeing the beginning of some favorite serials, new episode जो भी download हुआ है उसको देख लिया, or chat with a friend who sent a message because they expect an instant reply, etc etc. So basically what this girl told me was that she finds it difficult to stay focused on her Amway business activities. And then she made a very casual remark to me saying that since I am an IITian and because I am an older generation from her, so probably I wouldn't have faced this problem in my life which young entrepreneurs are facing today. क्योंकि मैं IIT से हूँ और जनरेशन बड़ा हूँ उससे, तो ये सब दिक्कतें जो आजकल यंग entrepreneurs को आती हैं ये सब शायद मैंने फेस नहीं करी होंगी, ऐसा उसने बोला मुझे. Frankly, I was a bit surprised by what she said and I told her, why would you think that I have not faced this problem in my life? And what does being an IITian have anything to do with it? IITian होने से क्या फ़र्क पड़ता है और आपको क्या लगता है कि मैंने प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करी होगी? She told me that she felt that I'm probably this kind of a person who thinks through everything they do in life, जो हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करने वाले लोगों में से हैं, and probably I make calculated, well thought out decisions in my life, and शायद मैं अपने distractions को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता हूँ, अपने मन को कंट्रोल कर लेता हूँ without getting defocused. So I told this girl that that's definitely not true, rather far from it. I also had trouble growing up, where
मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था बाय प्लेजरेबल थिंग्स अराउंड मी एंड आई हैड टू लर्न टू फोकस माई माइंड ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ रादर देन सिंपली फॉलोइंग माई इम्पल्सेस। मन तो करता था कि पढ़ने की बजाय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो या वीडियो गेम्स खेलो या बाहर घूमने चले जाओ, लेकिन फिर जब याद आता था कि नहीं पढ़ाई करना ज़रूरी है तो पढ़ाई करते थे। सो आई टोल्ड हर दैट लुक, फोकस इज़ लाइक अ मसल, द मोर यू एक्सरसाइज दिस मसल द मोर इट गेट्स बेटर विद टाइम। ये जो फोकस करना है ये आपकी एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये बेहतर होती जाती है समय के साथ साथ। And then I told her that look, our mind is always being distracted or seduced by our 5 senses। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ये हमेशा माइंड को कहीं और डाइवर्ट करती है और सबके साथ होता है। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या आपने वो फेमस पिक्चर देखी है महाभारत की जिसमें देयर इज अ चैरियट विद 5 हॉर्सेस और उसमें लॉर्ड कृष्णा बैठे हुए हैं एज अ सारथी विद अर्जुन सिटिंग बिहाइंड हिम उनके पीछे। एंड शी सेड यस, इट्स अ वेरी कॉमन पिक्चर एंड शी हैज सीन इट इन हर ओन हाउस होल्ड and in many of her relatives and other houses also many a times. Then I asked her, मैंने उसको पूछा कि उस पिक्चर का आपको सिग्निफिकेंस मालूम है क्या है really? तो she said something like, it shows that Lord Krishna and Arjun are fighting a war and like this she just told me. तो फिर मैंने उसको बताया कि वो जो चैरियट है ना उस पिक्चर में, that chariot actually represents our body and the passenger Arjuna that represents our soul and the charioteer जो है, जो सारथी है लॉर्ड कृष्णा, दैट रिप्रेजेंट्स आवर बुद्धि और आवर इंटेलेक्ट एंड द 5 हॉर्सेस आर लाइक योर 5 सेंसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल, टच, ऑल दीज थिंग्स। एंड द होल आइडिया इज दैट जो हमारा जो माइंड है और जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो सारथी है, चैरियटर है, इट हैज़ टू कंट्रोल आवर 5 senses for the benefit of the passenger, which is basically our soul. I told her that your soul has a purpose which we call your dreams. I asked her if she has a bucket list of dreams which she has put on her vision board. She said yes, I have many dreams. So I told her that आप जिन sensory distractions की बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी के थ्रू या वैसे, they are like those 5 horses जो कि हमेशा आसान रास्ता ढूंढती हैं। They always try to choose the easy path which makes them comfortable. जैसे अगर आपका रथ जो है एक ऐसी जगह पे जा रहा है where there is a choice, one choice is of a downward slope, एक चॉइस है कि ढलान नीचे की तरफ जा रही है और दूसरा चॉइस जो है कि एक रास्ता चढ़ाई का है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोप। देन अगर आप घोड़ों पे छोड़ोगे, इफ़ यू लीव इट टू योर सेंसेस, देन द सेंसेस विल से ओके हम ढलान की तरफ जाएंगे। लेकिन सारथी का काम होता है कि वो उन इंद्रियों को थोड़ा सा पकड़ के रखे और उनको ऊपर जाने के लिए, जो कठिन रास्ता है उस पे जाने के लिए अपवर्ड स्लोप पे उनको गाइड करे। सो यू हैव टू ऑलवेज यूज योर इंटेलेक्ट टू गाइड यू टूवर्ड्स फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। और फिर मैंने उसको बताया, आई टोल्ड दैट गर्ल कि अगर मैंने अपने सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस को बचपन में कंट्रोल नहीं किया होता तो शायद मैं IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप 100 रैंक तो दूर की बात है, प्रॉबली आई वुडंट इवन हैव क्वालिफाइड, मैं शायद क्वालिफाई नहीं कर पाया होता। So she has to learn to control her sensory distractions to stay focused on fulfilling her dreams. तो अब इस बात पे that girl told me that she finds it very confusing when we tell her on one hand to focus on her dreams and what she wants in life, but on the other hand she says कि you guys tell us to also stay detached from our dreams and just keep working and love the work and love the process, like that shloka जिसमें बताया गया है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मतलब फल की कामना मत करो, बस काम किए जाओ। So this was her exact word. She said that she finds it very contradictory. उसने बोला कि ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मैं फल की कामना और फल की चाहत नहीं करूँगी तो ठीक से काम कैसे कर पाऊँगी। These were her exact words to me, that if I don't love my dreams and goals, if I don't stay attached to them, how will I be able to do work properly? So naturally I was a little bit shocked, and then I told her that look, she's misinterpreting, because that's not what we told her ever. हमने कभी ऐसा बताया ही नहीं कि आप अपने ड्रीम से प्यार मत करो। इनफैक्ट आई टोल्ड हर कि शायद हमारे ही समझाने में कुछ गलती हो गई होगी, क्योंकि हम शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। I told her that look, you must fall in love with your dreams, और फल की कामना तो ज़रूर करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। लेकिन उस फल की फिक्र मत करो, जस्ट डोंट वरी अबाउट द आउटकम। मैंने उसको पूछा उस लड़की को कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी।
She said, yeah, I have. She said that many of her friends, they get stressed out before some important exam or event in life, and become nervous. So I told her that, look, the first time I had to speak in front of a very large audience in our Amway business, तो 5 मिनट की स्पीच से पहले माई थ्रोट वॉज कम्प्लीटली पार्ट, मेरा गला सूख गया था. आई वॉज सो नर्वस. और मैं ये सोच के कि पता नहीं कहीं गलती ना हो जाए, लोग हंसना पड़े मुझ पे. आई वॉज सो वरिड कि आई वॉज वेरी नर्वस थ्रू आउट द टॉक, 5 मिनट की टॉक के लिए. सो बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है आउटकम के बारे में उलट पलट के इतना सोचते हैं कि उसकी चिंता में हमारी परफॉर्मेंस ही खराब हो जाती है. दैट इज वाई इन आवर Amway business we use a term called paralysis of analysis. So that girl said, yeah, I've heard of that term. So I told her that, look, to prevent that performance anxiety, only that Gita shlok is there. कि don't worry about the outcome, just do your work well and enjoy it. And that work, अगर अच्छे से काम किया है तो that work will bring you benefit. और उसके बाद फिर मैंने उस लड़की को बताया, and then I told her that in my opinion the modern interpretation of this shloka in English today would be something like this. It matters not whether you win or lose, it's how well you play the game. ये मायने नहीं रखता कि आप जीतते हैं या हारते हैं, ये मायने रखता है कि आप खेल को कितनी अच्छी तरीके से खेलते हैं. एंड इवन इन दिस सेइंग ऑल्सो कई बार लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इस कथन में, इस प्रोवर्ब में वी आर एक्चुअली टेलिंग द पीपल दैट विनिंग डजंट मैटर. दैट इज नॉट ट्रू. विनिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर गेम. क्योंकि अगर आप जीतने के चक्कर में इन विनिंग, इफ यू वायलेट द रूल्स ऑफ द गेम, इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मॉरल्स, वैल्यूज, इफ यू वायलेट द एथिक्स ऑफ द गेम, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विनिंग. यहाँ पर I gave her the example of the doping scandal of Lance Armstrong, who was considered a legendary cyclist in the world. वो भी Dallas, Texas में हमारे घर के पास एक जगह थी, प्लेनो, वहाँ से था. He was from a place near a house in Dallas called Plano. और बहुत ही कम एज पे, बचपन में ही survived cancer and he took up cycling. और वो साइकिलिंग इतने अच्छे से करी in spite of a cancer survivor कि he became the biggest cyclist in the history of the sports. Winning the toughest and the most prestigious competition, Tour de France, 7 times in a row. And he became a celebrity. I used to follow him. President George Bush, Oprah, ये सब के सब उसको फीचर करते थे अपने प्रोग्राम्स अपने साथ में. And then he retired from sports, from cycling. और कई साल बाद उसके पुराने ब्लड सैंपल्स की एनालिसिस से पता लगा कि वो एक्चुअली परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स लिया करता था. He was actually doping himself. And all his past medals were taken away. He was stripped of his titles. उसका नाम रिकॉर्ड बुक से हटा दिया गया. He was publicly humiliated and he was banned from competing in any sports. Even वो अपने बच्चों के स्कूल में जाके एक पेरेंट्स का स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए गया तो वहाँ पर भी उसको compete नहीं करने दिया गया. तो अब मुझे बताओ कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? What's the point of winning like this? Where you do something secretly, wrong things to win, but that thing in secret is going to come out someday. जो भी आप गड़बड़ काम करोगे जीतने के लिए, वो एक ना एक दिन सारी करतूतें बाहर आने वाली हैं. And then I told her that if you play well in life, besides winning, you also get lots of other benefits. And यहाँ पर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया बैडमिंटन का कि I play badminton with a group of people, जहाँ पर हम लोग जो हैं शाम को हफ्ते में 3 या 4 बार गेम्स खेलते हैं. और जब भी गेम्स खेलते हैं तो हम गेम्स तो जीतने के पर्पस से ही खेलते हैं. आई टोल्ड हर दैट यू ऑलवेज प्ले विद द इंटेंशन ऑफ विनिंग द बैडमिंटन गेम्स, और कभी कभी तो जीतने के चक्कर में हम लोग फाइट करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर, कौन सही है कौन गलत है. बट एट द एंड ऑफ इट, नो मैटर हाउ मेनी गेम्स, हु विन्स हाउ मेनी गेम्स, कौन कितने गेम जीतता है, कौन नंबर 1 होता है, द रियल बेनिफिट इज़ नॉट कि किसने कितने गेम जीते. द रियल बेनिफिट इज दिस कि वो गेम खेलने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हम रिलैक्स होते हैं. एंड ऑल द कॉन्वर्सेशंस वी हैव ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द गेम, जहाँ थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं, दैट ऑल दोज बेनिफिट्स एक्चुअली फार आउटवे द आउटकम ऑफ विनिंग और लूजिंग. तो ये चीज़ जो है उस लड़की को समझ में आई. एंड देन आई टोल्ड हर कि लोग, इसीलिए हमारे बिजनेस में, Amway बिजनेस में, हम लोग बहुत बार ये कहते हैं कि the real value of achieving a pin or a level or a diamond is not the pin itself, but what we have become in the process of achieving the pin. जो हमें intangible rewards मिलते हैं इस बिजनेस में, बिजनेस को बिल्ड करके अपने गोल को हासिल करने में,
वो intangible rewards like the friendship of people, the fellowship, the brotherhood or sisterhood of like-minded individuals, the personal growth in ourselves, जो हम better life partner बनते हैं, better parents बनते हैं, the physical and mental health जो हमारी improve होती है, that becomes the real reward. लेकिन अगर हम लोग जो है ये फिलॉसफी रखेंगे कि किसी भी कीमत पे जीतना है, if we keep that philosophy of winning at any cost, तो अगर हम लोगों ने एमवे में कोई पिन हासिल कर भी लिया at any cost, wrong तरीका, by using wrong means, breaking all the rules of doing the Amway business and thinking कि कोई हमें वॉच नहीं कर रहा है, तो ऐसे पिन का और ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? What is the point of that? So anyways, so I told her that look, this Gita shlok is just saying the same thing that आपको काम करने का अधिकार है, you have the right to work, you have the right to ask questions about the work from your upline coach and mentor. आप उनसे आपका हक है कि आप उनसे सवाल पूछो कि इस काम को बेहतर कैसे करना है, कैसे बेहतर कांटेक्ट करें, कैसे बेहतर फॉलोअप्स करें, कैसे बेहतर प्रेजेंटेशंस करें, कैसे बेहतर रिटेलिंग करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आप ये सवाल ज़रूर पूछें उनसे, आपका हक है. सीक क्लैरिटी, अंडरस्टैंड करो, इन सब चीज़ों पे आपका अधिकार है. बट गीता का श्लोक यही बोलता है कि जो रिजल्ट आएगा उस काम से, उस पर आपका अधिकार नहीं है. एंड इसीलिए मैंने उसको बताया कि जो भी आप काम कर रहे हो एमवे बिजनेस में, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसका रिजल्ट जो है भगवान के हाथ में छोड़ दो. क्योंकि दो लोग अगर एमवे बिजनेस में सेम काम करते हैं, सेम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो दोनों को बराबर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. अगर दो खेत भी, इवन इफ टू फील्ड्स अगल बगल, वेयर टू फार्मर्स आर प्लांटिंग द सेम क्रॉप्स इन द सेम फैशन, सेम सॉइल कंडीशंस, एक जैसी परवाह करेंगे, तब भी दोनों फार्म्स की, दोनों खेतों की ईल्ड में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा ही. बिकॉज गॉड विल डिसाइड कि कौन सा बीज जर्मिनेट करेगा, कौन सा पौधा कितना बड़ा होगा. दैट इज ऑल इन गॉड्स हैंड्स. एंड देन आई आस्क्ड द गर्ल इफ यू हैव फेथ इन गॉड, एंड शी सेड यस, आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बट आई एम नॉट रिलीजियस. सो आई टोल्ड हर दैट लुक, you should be fine, just need to spiritualize your life and establish a connection with God or a higher power and just have faith in it and have your own morals and ethics that you follow, and that should be fine. ऐसे करके जब हम अपनी टॉक ख़त्म कर रहे थे, when we were like this, when we were about to finish our talk, she asked me, that how as a leader in our business, she can control the distractions in her life and what's my advice to her. तो यहाँ पर मैंने उसको बताया कि अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है गीता में, विच इज़ कॉल्ड स्थित प्रज्ञ पर्सन. एंड शी लाफ्ड एंड शी आस्क्ड मी व्हाई डू आई कीप कोटिंग सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट. भगवत गीता और महाभारत के इतने एग्जांपल्स में क्यों कोट करता हूँ, उसने मुझसे पूछा. एंड शी आस्क्ड मी, इज इट अ रिक्वायरमेंट टू नो ऑल दीज थिंग्स टू ग्रो बिग इन द बिजनेस. उसने इनोसेंस में मुझसे पूछा कि ये सब जानना ज़रूरी है क्या बिजनेस में, बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए. सो आई टोल्ड हर कि लुक, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बट इट हेल्प्स टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट. और मेरे केस में आई टोल्ड हर दैट क्योंकि जब मैं स्कूल में था 10th क्लास में, आई हैड अ चॉइस ऑफ टेकिंग संस्कृत और हिंदी और अ फॉरेन लैंग्वेज. तो मैंने संस्कृत चूज़ करी थी बिकॉज इट वॉज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो उस वक्त जो मैंने पढ़ा था वो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं, एंड दैट इज़ वाई आई कीप ब्रिंगिंग दोज examples in my talks. But I told her, look, you have to find your own books which motivate and inspire you. And as an example, I told her, look, Bhagavad Gita definitely helped because it's a self-help book that is relevant for so many thousands of years. आज भी वो relevant है इतने हज़ारों सालों बाद भी. और जितने भी modern self-help experts हुए हैं like Wayne Dyer, Tony Robbins, Deepak Chopra, Oprah, उन सब ने भगवत गीता को रेफरेंस किया ही किया है. तो डेफिनेटली इट्स वर्थ लुकिंग इनटू. बट उसमें जो भी बताया गया है भगवत गीता में, उसको हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर आई गेव हर द डेफिनेशन इन गीता ऑफ अ स्थित प्रज्ञ पर्सन. आई टोल्ड हर दैट लुक, स्थित मीन्स काम एंड स्टडी, और प्रज्ञा का मतलब होता है मोर देन मन. इट मीन्स बुद्धि, विवेक, विजडम, आपका इंटेलेक्ट. So person who has steady intellect is called sthit pragya person, free from any ego. They have equanimity in life. बड़ा समान भाव रहता है. They take victory and defeat both of them with very calm mind. जैसे कि मैंने उसको एग्जाम्पल दिया टेनिस लेजेंड बियॉन्ड बॉग का.
जिनके बारे में फेमस था कि मैचेस के बीच में उनका बीपी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था तो बिल्कुल स्टेबल रहता था वो इन द टफेस्ट ऑफ मैचेस. सो आई टोल्ड हर कि ही वॉज प्रॉबली अ स्थित प्रज्ञ पर्सन, यू नो. एंड आई टोल्ड हर दैट मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स पीपल, हाई अचीवर्स आर स्थित प्रज्ञ पर्सन. वो विचलित नहीं होते हैं. टफेस्ट से टफेस्ट डिसीजंस भी होते हैं ना स्पोर्ट्स में, बिल्कुल कामली कंपोजर के साथ ले लेते हैं. एंड आई टोल्ड हर दैट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हु ओनली लाइक प्रेजेस, जिसको अपनी प्रशंसा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई उसके बारे में बुरा बोल दे तो ही फील्स कि उसको पिटवाने का मन करता है उसको, ही फील्स लाइक बैशिंग अप पीपल हु यूज बैड वर्ड्स फॉर हिम. डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति तो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, ये तो बात सही है. सो आई टोल्ड हर कि लुक, somebody who is स्थित प्रज्ञ, they will enjoy all the things in life. एमवे के अच्छे से अच्छे सेलिब्रेशंस को एंजॉय करेगा, एमवे को ट्रिप्स को भी एंजॉय करेगा, और अगर नहीं भी हो रहा है तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता. ही विल एम्पथाइज विद द पीपल इन आवर टीम हु आर हैविंग डिफिकल्टीज, लेकिन उससे उसकी परफॉर्मेंस में कोई अफेक्ट नहीं आने वाला. सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग, देन शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि क्या आप और आपके डायमंड जो हैं, आप सब लोग स्थित प्रज्ञ लोग हो क्या? आर यू एंड ऑल योर डायमंड्स, आर यू ऑल स्थित प्रज्ञ पर्सन्स? So I told her that probably some more than the others, कुछ शायद और लोगों से ज़्यादा और कुछ और लोगों से कम, बट हम सभी लोग जो हैं we try to be a स्थित प्रज्ञ person, level headed, somebody with a steady intellect. और if we don't know what our ideal is, how will we reach there? अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा आइडियल क्या है तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? So friends, इस तरीके से हमारी बात ख़त्म हुई है, एंड दिस इज़ हाउ वी फिनिश्ड आवर कॉन्वर्सेशन. एंड इट वाज अ वेरी वेरी enjoyable conversation because it made me understand the perspective of a young Gen Z entrepreneur. एंड मैंने बहुत कुछ सीखा. आशा करता हूँ कि आप भी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मज़ा मुझे उस गर्ल से बात करके आया. I hope you also enjoyed listening to this talk and our conversation as much as I enjoyed having this conversation with this young budding Gen Z woman entrepreneur. Definitely uske question se I learned a lot, almost as much as she probably learned from talking to me. जितना उन्होंने मुझसे बातचीत में सीखा, लगभग उतना ही मैंने भी उनसे बातचीत करके और उनके पर्सपेक्टिव को जानने से सीखा. और आगे भी यही सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा. एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग. एंड दिस इज़ योर फ्रेंड साइनिंग ऑफ. टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय फॉर नाउ.